Yes, good morning, students. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। मैम। हाँ बोलो। यस मैम नोट्स हाँ क्या हुआ? पीडीएफ मैम। कौन सा पीडीएफ? मैंने सेंड मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो वाला ना? हाँ मैम। मैंने सेंड किया, चेक करो ना। ओनली ये 2 डेज का बाकी होगा। मैंने कभी परसों सेंड किया था सारे कंट्रोल का जो है ना। यस मैम। सेंड इन द गूगल क्लासरूम, चेक करो। ओके मैम, आई विल चेक। हाँ, ओनली नेविगेशन कंट्रोल्स। हाँ, रीच कंट्रोल तक मैंने आई हैव ऑलरेडी शेयर अप टू रीच कंट्रोल्स तक मैंने शेयर कर दिया था। ओके। हाँ, चेक करो। अगर कोई इश्यू है तो टेल मी, आई विल अगेन सेंड। ओके। मैंने एसवाई एंड टीवाई दोनों का नोट सेंड कर दिया था। ये नेविगेशन से बाकी है, रीच कंट्रोल्स तक मैंने सेंड कर दिया है। ओके, यस। In the last lecture, we have started the navigation controls. Okay, navigation controls are used to navigate from one page to another page. Okay, web pages means web page. There are 3 types of navigation control. The first is tree view control. The second is menu control, and the third one is site map control. The use of these 3 controls are to navigate. Okay, in the websites from the different pages. Okay, if you want to go from one page to another page, or you want to display the users from navigation, so you can use these controls, navigation controls: tree view control, menu control, and sitemap control. Only the structure, okay, the use of all the controls is same to navigate. Okay, but what is the difference? The structure. Okay, uska jo display structure jo design jo the design is different from each other. Okay, the tree view that we have covered in the last lecture, the tree view look like tree jaisa structure uska dikhega. Okay, wait. Then we have also covered the menu control. Okay, menu control also we have covered. Okay, तो हाँ बोलो। यस, मेनू कंट्रोल एक बार रिपीट कर दीजिए। यस यस। ओके, मेनू कंट्रोल हम लोग रिपीट करते क्योंकि वो ऐसे भी बाकी है, डायनेमिक बाकी था। Okay, the menu control is also navigation control, which is used to display the site navigation information. Okay, there are 2 types of menu control. 2 types means the menu control can be used as 2 types: the static menu and dynamic menu. तो static मतलब क्या, जो items जो है, okay, it is used to display parent menu items and that sub menu items on the page. Means it is used to display entire structure of the static menu. And dynamic menu क्या होगा? When user passes the mouse over the menu, then it will be appear on the site. Okay, तो हमने ये किया था static menu, पहले हम लोग देख लेते हैं, then dynamic menu. Wait. Okay, this is a tree view example that we have covered. This is menu control example. This menu control is in static view. ठीक है, ये कौन सा है? स्टेटिक व्यू में. ओके, हम लोग और एक मेनू कंट्रोल ले रहे हैं और वो उसका डायनेमिक व्यू हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो एक ही पेज पे ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा. वेट. See, this is a menu that we have taken in the last lecture, menu control. Okay, in the edit menu items you can add your navigations links. Okay, the view is, इसका view क्या है? Static. The view of this menu control is static. Okay, now अभी हम और एक menu control ले रहे हैं. ठीक है, menu control again I am taking. Yes, label था ना यहाँ पे. Okay, this is menu control. ये हो गया, ये हो गया.
You can control also, you can also copy paste of this controls. तो आप copy paste भी controls का कर सकते हो अगर आपको copy paste करना है टूल बॉक्स में नहीं जाना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेबल लिया, अगर मुझे और लेबल चाहिए तो मैं वो ऊपर वाला लेबल को कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ. ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं कॉपी पेस्ट भी, बट अभी नहीं, बाद में जब आप उसके साथ यूज टू हो जाओगे यूज टू विद दिस सब कंट्रोल्स के साथ, उसके बाद करना. ठीक है, एक लेबल ले लिया, उसका मैं प्रॉपर्टी सेट करूँ. क्या हो रहा है? चलो जाने दो, छोड़ो उसको. लेबल मेनू कंट्रोल इन डायनेमिक व्यू. ठीक है, मेनू का ऊपर वाला जो मेनू कंट्रोल एग्जांपल है दैट इज स्टैटिक व्यू है. ये जो मेनू कंट्रोल हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं दैट इज डायनेमिक व्यू. ठीक है, मेनू कंट्रोल एग्जांपल इन डायनेमिक व्यू. डायनेमिक व्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिफरेंस जो है दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, now यहाँ पे मैं again I am taking one menu control. Okay, this is a menu control. Okay, now here I am changing the views. Okay, उसका व्यू में डायनेमिक करी. जो ऊपर हमने लिया था उसका क्या था, स्टैटिक था. ये नीचे जो हमने लिया है दैट इज अ डायनेमिक. ओके ओके, नाउ select any page. टेक्स्ट आइटम में हम लोग लिखेंगे select any page. आपको जो भी टाइप करवाना है, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं. ओके, दिस इज एग्जांपल है. देन लिस्ट कंट्रोल्स list. Okay, then ये list controls में we want to add pages, so I am taking the child. Okay, for this list controls. Then list controls में checkbox page, या for example whatever you want to type. Okay, उसका navigation URL. Okay, properties, now we are setting checkbox example page. Okay, these are the web pages. Okay, these are the web pages जो भी आपको लिंक देना है जो पेज के लिए. Okay, again I am adding new item. Okay, text property checkbox रेडियो बटन, दो ही ले लूँ मैं. ठीक है, रेडियो बटन navigation URL page में I am setting the रेडियो बटन का एग्जांपल नहीं किया हम लोगों ने. ठीक है, चलो उसमें ड्रॉप डाउन का पेज आए सेटिंग. ओके, ड्रॉप डाउन का ले रही, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो ओके, यस, नाउ अनदर कंट्रोल्स आई वांट टू ऐड. तो इसमें मैंने मेन, दिस इज अ मेन थिंग. ओके, आपको चाइल्ड कहाँ पे ऐड करना है, पेरेंट कहाँ पे ऐड करना है, दिस इज फॉर चाइल्ड. ओके, ये जो है आपका रूट आइटम है. ओके, तो आपको कैसे सेट चूज करना है दैट यू हैव टू डिसाइड इट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिच कंट्रोल्स लिख रहे हैं. रिच कंट्रोल्स okay, rich controls में I am adding one child. Okay, in that text I am writing calendar control. Calendar example you can say जो भी आपको navigate URL calendar का page select करके. Okay, then one more child item I am adding
add rotator एग्जाम्पल। कोई कोडिंग हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट सेटिंग द प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, तो कुछ कोडिंग किया ही नहीं, कोडिंग की जरूरत है ही नहीं हमको। ओके, क्या लिखा मैंने, ऐड रोटेटर। ओके ओके ओके, अबे ओके, so this is a dynamic view है, this is the static view है। okay, this is the static view है। menu controls ये both are the menu controls, this is also menu control, this is also menu control, but it is a static view, it is a dynamic view। okay, yes. Now I'm running this page। yes, tomorrow you have the class test ना of IWP। कल है ना, यूनिट 1 ही रखना है, ठीक है। yes, Gerald is not in the lecture, शोएब पटेल लेक्चर में नहीं है। हाँ, और कौन राशिद आई थिंक नहीं है। ऐसा क्यों करते ये लोग। ये उस गूगल क्लासरूम में मैंने सेंड किया, किसी ने चेक किया है ये जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है, दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड इन द गूगल। मैम है ना, है यस। वीडियो लेक्चर्स का लिंक ना, वो यूट्यूब से यू कैन रिफर। जो लेक्चर्स के जो लिंक्स है वो वीडियो यूट्यूब का जो है उसमें यू विल गेट डेली लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसमें सबको मिल जाएगा। ओके, तब तक हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल थोड़ा देख लेते हैं, वो रन हो रहा है। रनिंग मोड। द नेक्स्ट इज साइट मैप। ओके, साइट मैप, द नेक्स्ट इज साइट मैप। ये मेनू कंट्रोल इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है। जब वो रन होगा हम उसका आउटपुट देखते हैं क्या है। स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों हमने रन, मतलब वी हैव डिजाइन। ओके, वी विल सी इन द आउटपुट जब यहाँ पे रन होगा हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट इज, हो गया। The next is sitemap control. Okay, sitemap control is also used to display the navigation information on the site. It displays the current page context within the entire structure of the website. Okay, it display the current page. It display the current page context within the entire structure of the websites. Okay, जब हम लोग run करेंगे then you will get the idea कि ये वो क्या है। But है तो it is navigation control. Okay, navigation information आपको site पे display करवाना है, तो it is sitemap control is used. There are some steps to implement the sitemap path control on the web page, which are the given below. Okay, use तो same ही navigation के लिए use करना है। Which are the steps? उसका steps क्या है वो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे steps दिया हुआ है। Okay, steps are given here. Okay, आप घर पे भी practice कर सकते हो steps पढ़ के। Okay. दोनों हैंग हो गया, ये भी और वो भी। Yes, and you remember all the properties of all the controls. Okay, properties, list controls का properties, reach controls properties. Okay, navigation controls properties. कौन सा properties we are using, that you have to remember. Okay, I will ask in the MCQ maybe and Viva maybe. तो जो ये है क्या बोलते हैं, properties are important. Okay, properties and methods both are the important. हर एक कंट्रोल के लिए अगर आपका थियरी पेपर होता ना, तो you have to
prepared 6 to 7 properties for every controls. Okay, theory में questions कैसे यूनिवर्सिटी में आते थे कि explain the any two navigation controls with the properties and methods, explain the calendar control with its important properties. ऐसे questions theory में होते हैं. जब theory paper होता है तो the questions are like this के explain the add rotator control with the example and important properties. तो ऐसे आपको prepare करना रहता है. चलो ओके, व्हिच आर दिस स्टेप्स. क्या स्टेप्स करना है? फर्स्ट ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, फाइल में जाके न्यू फाइल ले लिया, वेबसाइट ले लिया. ओके, ऐड न्यू वेब फॉर्म ले लो. नाउ अगेन ऐड साइट मैप फाइल इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. Okay, which file now in this control sitemap control you have to add one more file. Okay, that is a sitemap file. Okay, क्या ओपन करना है आपको? Now again add sitemap file in the solution explorer. Add new item में जाके sitemap file you have to add. Then जो फाइल आप ऐड करोगे उसको ओपन करना है. ओके, ओपन दैट sitemap फाइल. जो sitemap फाइल यू हैव ऐड ना, उसका नेम होगा web.sitemap. ओपन करो दैट फाइल को एंड राइट द फॉलोइंग कोड्स. ओके, नाउ इन जो फाइल होगा दैट इज XML फाइल होगा. कौन सा फाइल होगा? XML फाइल होगा. web.sitemap फाइल यू हैव टू ऐड. इन दैट फाइल में यू हैव टू राइट योर नोड इंफॉर्मेशन. ओके, मतलब आपको नेविगेशन उसमें आपको लिखना है. हाउ टू राइट नेविगेशन की साइटमैप नोड URL. ओके, कौन सा पेज मेन जो नोड है, ठीक है, उसका लिंक उस पर क्लिक करने से क्या ओपन होना चाहिए, उसका टाइटल क्या दिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन इफ वांट टू यू. देन साइटमैप नोड URL, उसके अंदर मेन नोड के अंदर आपको और कौन सा नोड चाहिए, जो अभी हम लोग करें ना रिच कंट्रोल्स में हमने लिंक सब चाइल्ड्स दिया. ठीक है, तो वैसे बट आपको यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू राइट, आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप. उसके बाद क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप साइटमैप कंट्रोल ऑन दी वेब फॉर्म. ठीक है, जो हमने वेब फॉर्म में किया था उस पर वो कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. ओके, एंड उसमें एक हाइपर ट्रैक जो नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप हाइपरलिंक कंट्रोल ऑन दी फॉर्म. थोड़ा ये डिफिकल्ट है बट हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल गेट आइडिया कि ये क्या है. देन आपको उसमें हाइपरलिंक कंट्रोल्स लेना है एंड वो कंट्रोल्स में आपको उसमें सेट करना है. ठीक है, नाउ ऐड 3 more वेब फॉर्म्स. पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड दी वेब फॉर्म, तो हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. हाइपरलिंक बटन की प्रॉपर्टीज में जाना है एंड उसमें वो सेट करना है. तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बट कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ओके, चलो पहले इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, डिस्प्ले हुआ कि नहीं. यस, क्या हो गया? यस, दिस इज, ये देखो ये स्टैटिक है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस चेंज नहीं हुआ क्या? सिलेक्ट, दिस इज स्टैटिक व्यू ना. स्टैटिक व्यू में सब आ जाना चाहिए, रेडियो बटन. दिस इज डायनेमिक व्यू. स्टैटिक व्यू में व्हेन वी क्लिक, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल जो है वो एक साथ में डिस्प्ले होना चाहिए. डायनेमिक में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसा है. दोनों लुक सेम ही लग रहा है, सेम ही है. वेट 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 वेट, देखा? प्रॉपर्टीज, स्टैटिक मेनू 1 है ना, मेनू 1 का प्रॉपर्टी, दिस इज स्क्रॉलिंग का प्रॉपर्टी. स्टैटिक मेनू स्टाइल, स्टैटिक है ना. दिस इज बरोबर किया हम लोगों ने. दिस इज
डायनेमिक व्यूज जो है दैट इज डायनेमिक व्यू, बट स्टूडेंट्स बेटा दैट इज इसका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया है। वेट, प्रॉपर्टीज ओके, इसका ओरिएंटेशन, व्हाट इज ओरिएंटेशन ऑफ दिस कंट्रोल, ओरिएंटेशन दोनों का हॉरिजॉन्टल करते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों का ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल किया है, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आइटम्स ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। व्यूज प्रॉपर्टीज दैट वी हैव ऑलरेडी सेट, बट वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। आइटम्स पाथ वैलिड स्टैटिक, चलो अगेन हम लोग रन करके देखते हैं। कुछ चेंज तो नहीं किया है, ओनली ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज वी हैव चेंज, बट उससे कुछ ना फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मतलब क्या, जब आप क्लिक करोगे ना उस पे तो वो एक साथ ऑल जो मेनूज है वो डिस्प्ले होना चाहिए। डायनेमिक मतलब क्या, व्हेन वी विल क्लिक ऑन द पर्टिकुलर मेनू तो वो मेनू का ही डिस्प्ले होना चाहिए। दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक का डिफरेंस है। ये वर्टिकल व्यू है, इसे वो समझ में नहीं आ रहा है फिर। वेट, रन करते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। डिफरेंस मेन उसका शो होना चाहिए। प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी सेट, जो उन्होंने बोला वैसे प्रॉपर्टी वी हैव सेट। ओके, दिस इज स्टैटिक था ना, स्टैटिक में चेक बॉक्स व्हेन वी क्लिक ऑन स्टैटिक, ठीक है। तो जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो सब डिस्प्ले हो रहा है। डायनेमिक सेम ही हो रहा है ना, सेम है ना स्टूडेंट, यस डिस्प्ले सेम हो रहा है। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस पेज, लिंक पे क्लिक करें तो लिस्ट कंट्रोल्स रिच कंट्रोल्स दोनों डिस्प्ले हो रहा है। सेम यहाँ पे भी दोनों डिस्प्ले हो रहा है। व्हेन हम इस पे क्लिक करेंगे लिस्ट कंट्रोल्स तो ये दोनों डिस्प्ले हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों हो रहा है। सेम यहाँ पे भी वही है। सिलेक्ट एनी पेज, सिलेक्ट एनी पेज, इट इज नॉट टेकिंग, वेट कुछ तो wait, we have again check what is the mistake। और उन्होंने वो डायनेमिक व्यू, स्टैटिक मेनू फॉर्म, नाउ सिलेक्ट व्यूज स्टैटिक एज शोन इन बिलो, ठीक है। हमने स्टैटिक ही सिलेक्ट किया था। एडिट मेनू पेरेंट एंड नोट चाइल्ड दैट वी ऑलरेडी किया, देन रन किया। ओके, तो स्टैटिक मेनू विथ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो कंट्री इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, ओके। तो ये हो रहा है, ओके। एंड ये वर्टिकल मेनू, ठीक है। डायनेमिक व्हेन यूजर पास द माउस ओवर द कंट्रोल द डेटा विल ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द साइड। ओके, डायनेमिक मतलब क्या, व्हेन यूजर पास द माउस ओवर द कंट्रोल द डेटा विल ऑटोमेटिकली अपीयर। वेट वेट वेट, दोनों में सेम ही हो रहा है। व्हेन वी आर मूविंग द माउस, मूव करे इस पे तो
सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, नो डिफरेंस इज देयर। When a user passes the mouse over the control, the data will automatically appear on the site. We can generate dynamic menu control in two ways. Generate menu control XML data source से कुछ फर्क नहीं है, main XML, this is XML. Okay, I will check. Okay, I will check. मैं इसको check करती हूँ what is the issue, क्या है। Okay, बेसिक इतना ही वी हैव टू चेंज कि उसका व्यू जो है दैट हमको चेंज करना है। ओके, जो हमने ऑलरेडी वी हैव चेंज दी व्यूज। ओके, स्टैटिक हमने उसको किया एंड इसको हमने जो सेकंड मेनू है दैट वी हैव डायनेमिक हमने किया। ठीक है, डायनेमिक चेंज किया, बाकी कोई चेंज उसमें डिफरेंस नहीं है। और प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ है नहीं, ओनली दैट प्रॉपर्टी वी हैव टू सेट। ओके ठीक है, चलो मैं चेक करूंगी। बट क्या होना चाहिए डायनेमिक एंड स्टैटिक में कि जब हम लोग क्लिक करेंगे, डायनेमिक भी जब हम लोग कर्सर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। स्टैटिक में जब पूरा एक साथ ही दिखना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंस। ओके, यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये सारा जो लिस्ट कंट्रोल है उसका भी एंड लिस्ट कंट्रोल से दोनों पूरा एक साथ डिस्प्ले होना चाहिए, दैट इज अ स्टैटिक। एंड डायनेमिक मतलब का जब हम पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे ना तो होना चाहिए। तो ये जो व्यू है ना दैट इज डायनेमिक व्यू है। विच व्यू, दिस इज अ डायनेमिक, दोनों में डायनेमिक ही हो रहा है। वाई, बिकॉज जब हम लोग माउस लेके जा रहे हैं तब वो डिस्प्ले हो रहा है, तो दैट इज अ डायनेमिक, ये डायनेमिक है। ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या, जैसे हमने इस पे पेजेस पे क्लिक किया तो ऑल जो आइटम्स एंड उसका सब आइटम्स है दोनों पूरा एक साथ ही डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, दैट इज अ स्टैटिक। तो दोनों जो व्यू है वो एक ही ले रहा है, स्टैटिक सेट किया तो भी डायनेमिक ले रहा है, डायनेमिक सेट किया तो भी डायनेमिक ले रहा है। तो ये जरा मुझे चेक करना पड़ेगा कैसे क्यों हो रहा है। ओके, तो देखो कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है सबको? नहीं ना, सेम ही है ना? यस स्टूडेंट्स, सेम है ना? कैलेंडर एड रोटेटर, इसमें लिस्ट कंट्रोल्स, इसमें क्लिक किया तो लिस्ट कंट्रोल्स, इस पर क्लिक किया तो लिस्ट कंट्रोल्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कैलेंडर एड रोटेटर। ओके, रेडियो बटन, इस पे क्लिक, सेम है, दोनों का व्यू सेम हो रहा है। दैट आई विल चेक, मैं आपको दिखाऊंगी, देन चेक करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, व्हाट इज, क्या उसमें प्रॉब्लम है। ओके, तो ये ट्री व्यू है, दैट इज मेनू है, ये हमने उसको मेनू वर्टिकल कर दिया था। ठीक है, आप उसको हॉरिजॉन्टल करोगे तो ऐसे डिस्प्ले होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रॉपर्टी यू कैन सेट इन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विंडो। व्यू चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, व्यू इज चेंजिंग। फॉर एग्जांपल ये स्टैटिक, यहाँ पे मैंने उसका व्यू जो है दैट इज अनचेंजिंग। यस, इफ किसी के पास सिस्टम है घर पे तो ट्राई करो। ठीक है, ये ट्राई करो, किसके पास सिस्टम है प्लीज स्टूडेंट ट्राई एट होम। ओके, ये जो मेनूज वाला है वो ट्राई करो घर पे, अगर शॉर्ट आउट होता है तो टेल मी। ओके, मैं भी ट्राई करूंगी, यू आल्सो ट्राई। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल किया था ना हमने, वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल होगा। सेम इसमें भी प्रॉपर्टीज में ओरिएंटेशन वर्टिकल, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, हम उसका डायरेक्शन चेंज हो है। ओके, तो वी विल सी, ये हम लोग देखेंगे, आप भी ट्राई करो घर पे। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज साइट मैप। मेनू कंट्रोल का लुक जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्री व्यू कंट्रोल। ठीक है, ट्री व्यू में ट्री स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा है, मेनू में मेनू जैसे दिख रहा है। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट इज साइट मैप कंट्रोल। विच कंट्रोल? साइट मैप कंट्रोल, इट इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। अगर आप इसको रन करके देखें तो नेविगेट तो होगा ही। ठीक है, लिस्ट कंट्रोल, रेडियो बटन पे क्लिक किया तो रेडियो बटन का जो पेज है दैट विल बी ओपन। ओके, चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो चेक बॉक्स का जो पेज है दैट विल बी ओपन। ओके, दिस इज चेक बॉक्स। ओके, हमने उसमें जो लिंक दिया था, रिच कंट्रोल्स में कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो नेविगेट हो रहा है, नेविगेट इज डन। ओके, नेविगेट में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे? स्टैटिक एंड डायनेमिक में वो नहीं हो रहा है। ओके, सेम इसमें भी। ओके,
तो ये हो रहा है, नेविगेशन प्रॉपर हो रहा है। ओके मतलब जिस पे क्लिक करने से वो ओपन होना चाहिए, दैट इज ओपन हो रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो उसका डायनेमिक एंड स्टैटिक व्यू है दैट इज नॉट अप्लाइंग हियर, ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो व्यू मैं चेक कर लूंगी। बट नेविगेशन सब में हो रहा है, ट्री व्यू का भी नेविगेशन हो रहा है, मेनू कंट्रोल में भी नेविगेशन हो रहा है। ओके तो नेविगेशन में कोई इश्यू नहीं है, जो इश्यू है वो कौन सा है, डायनेमिक एंड स्टैटिक व्यू का है। ओके दैट आई विल चेक एंड टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट नेविगेशन कंट्रोल है, दैट इज अ साइट मैप नेविगेशन कंट्रोल, व्हिच कंट्रोल साइट मैप। ओके उसका भी सेम ही है, यूज तो सेम ही है, बट उसका जो डिजाइन करना, ओके दैट इज डिफरेंट। चलो यस सिस्टम जिसके पास घर पे है प्लीज ट्राई दिस। ओके किसके पास सिस्टम है, ट्राई करो घर पे। ओके क्या इश्यू हो रहा है, अगर शॉर्ट आउट होता है तो टेल मी। साइट मैप इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले नेविगेशन कंट्रोल, कैसे लेना उसके लिए वी हैव टू ऐड web.sitemap फाइल। क्या ऐड करना है हमको उसके लिए, वी हैव टू ऐड web.sitemap फाइल हमको ऐड करना है। दिस इज अ न्यू, जैसे @m हमने XML फाइल ऐड किया वैसे फॉर दिस कंट्रोल वी हैव टू ऐड web.sitemap फाइल हमको ऐड करना है। ओके इन दैट फाइल ओके वी हैव टू राइट लाइक दिस। चलो हम लोग करते हैं, पहले हम लोग एक न्यू ही पेज ले लेते हैं, बिकॉज साइट मैप इसमें हम लोग नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले हम लोग सिंपली आई एम एडिंग दी वेब फॉर्म, सिंपल वेब फॉर्म हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। एंड आइटम वेट, sometimes ना it takes long time and sometimes जल्दी से फटाक से हो जाता है। ओके नो इश्यू। चलो यस हम लोग एक न्यू सिंपली वेब फॉर्म, आई एम टेकिंग दी वेब फॉर्म, ठीक है, वेब फॉर्म जैसे हम लोग लेते हैं सिंपली वेब फॉर्म ले रहे हैं। व्हाई, बिकॉज वही वेब फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम लोग इसमें कर रहे हैं साइट मैप एग्जाम्पल, साइट मैप एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग दी वेब फॉर्म, कंफ्यूजन नहीं रखना है, वेब फॉर्म ले रही हूँ, सिंपली वेब फॉर्म ले रही हूँ, ठीक है। बिकॉज हमको वन मोर एक न्यू फाइल लेना है साइट मैप करके, वी हैव टू ऐड वन मोर फाइल। ओके एक और फाइल हमको लेना है साइट मैप करके, तो वो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके दिस इज सिंपल ASPX पेज है। ओके ये सिंपल साइट मैप एग्जाम्पल करके ASPX पेज है। ओके ना कौन सा फाइल उन्होंने लेने के लिए बुलाया, वी हैव टू ऐड न्यू आइटम sitemap file. Where is the sitemap? This is a sitemap. Okay, CSITE sitemap. इसका सिंबल ही देखो कैसे सिंबल है। ओके ये कनेक्ट एक पेज को सेकंड पेज से मतलब नेविगेट करने के लिए। ओके तो वी हैव टू ऐड sitemap फाइल, उसका नेम देखो web.sitemap है। ओके ऐड, आई एम एडिंग दिस फाइल। ओके दिस इज अ XML फाइल। ओके XML फाइल है। ओके web.sitemap, साइट मैप ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइट मैप नोड URL, इसमें आपको कुछ लिखना है, टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। ओके URL ओके जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। ओके यू कैन ऐड मोर, जो आपको ऐड करना है मोर टैग्स भी आप ऐड कर सकते हो। सी है साइट मैप नोड URL, तो उन्होंने पेज नेम दिया है साइट मैप .as